is much more higher than any of the industrial structures. So we have two options. One is the way you think to lead your life. The way, second is the way you want to make money through your life. So you have to choose any of them. But anyway, as a fisheries professional, I think I should start with this, and I should give you a boost, saying that don't put your head only in book. Go out of the books. There are many things happening around. See around it, understand it, make it available with your life, with dedications. Then we can do many things. Otherwise, life will be end with a stop. I belong to very small village in Tripura. If you see even the India map, I believe you will not find even Tripura. So I believe from that place and see with my works, and still I am a student, I consider I always learn. I don't think I know everything. As long I will be growing my life and my hairs will be white, I will consider I am always a student. I always love to learn from people, love from field, love from, everyone. And today whatever I am is because of my patience actually, not my knowledge. I love it from my heart, what I do. And whenever I go to any forum, I address first that I am a farmer. I know how to produce food for you. If I produce food for you, then whole nation cycle will be run. If there is no food, no doctors can work, no engineers can work, no politician cannot make policies. So we are in the first trophic chain of food. So we should consider we are next to God even, because we know how to produce food. Okay? Okay, anyway, so I will try to talk today on biofloc fish farming, but many of you, I think you know about it through YouTube. Today, Digital India makes everything more easy. By sitting at home, even in Gulmarg, you can know what is called biofloc. And but this is a science technology. पहले आपको समझना चाहिए साइंस क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है. What the difference is between science और टेक्नोलॉजी. हम लोग कभी नहीं बोलते ना साइंस टेक्नोलॉजी, नहीं बोलते हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी. साइंस क्या है? मेथड्स. साइंस है प्रोसेस, नॉलेज, और टेक्नोलॉजी है जिस नॉलेज और जिस प्रोसेस को we can apply it and we can get the benefit of science. That is called technology. So biofloc is called not biofloc science, is called technology. The science which leads to applicable form, and we can harness the beauty of science technology out of it. Okay? By name itself, biofloc. Bio means life. Bio means life. Life आप कैसे समझोगे? Life क्या है? हाँ? Life क्या है? Life. How you will define life as a farmer's perspective? Science के perspective नहीं. Anything that can reproduce. हाँ? Reproduce the basic. मैं अनपढ़ आदमी हूँ, आप अभी साइंस की ग्रेजुएट हो, आप अभी गए हो फार्मर को समझाने लाइफ क्या है. लाइफ आप कैसे समझाओगे? Anything that can grow, that can reproduce. Anything which we can pinch किया, fill किया. Where there is a sense, that is called life. Simple farmers language में आप लोग साइंस के बंदे हो, साइंस को साइंस के लैंग्वेज में तोड़ के फार्मर के लैंग्वेज में जोड़ के बोलना है. फार्मर को जाके आप बोलोगे रिप्रोड्यूस करते हैं, हार्ट बीट होना है, बोलता है हार्ट ही मेरे पास है नहीं है, किस तरह है मुझे ही मालूम नहीं है, आप ही बता दो. तो फार्मर ये भी नहीं पूछेगा कि बायो क्या होता है. हाँ राइट, मैं वही चीज आ रहा हूँ धींगा. राइट, सो दैट इज कॉल्ड साइंस.
जैसे जिसमें सेंस है दैट इज कॉल्ड लाइफ, राइट। अब उसके अंदर बायो जो है, बायो इज ए पार्ट ऑफ लाइफ। बायो फ्लॉक में जो बायो है इज ए मास ऑर्गेनिज्म कॉम्बिनेशन। जब हम लोग खाना खाते हैं थाली में, कोई बोलते हैं वेज थाली, इसका मतलब ये चावल रोटी और साथ में आप कुछ सब्जी दे दिया तो वेज थाली बन गया। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी वेजिटेबल्स टुगेदर, यू आर सर्विंग इट, बट अल्टीमेटली इट्स गोइंग टू ए वन इंजन हियर। बायोफ्लॉक में बायो जो है इज ए बायोलॉजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर। बहुत लोग जो एक्सपर्ट्स हैं बोलते हैं बायोफ्लॉक में बायोलॉजी मतलब बैक्टीरिया। नो, इज नॉट ए बैक्टीरिया, इज ए हेटेरोजेनियस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द वाटर सिस्टम। इसमें आप मॉस्किटो के लार्वी भी हो सकते हैं, प्रोटोजोआ भी हो सकते हैं, आपके कोई भी बेनिफिशियल अनबेनिफिशियल बैक्टीरिया भी हो सकता है। जितने सारे चीज हो जिसमें लाइफ है, जान है, उसको हम लोग बायोफ्लॉक में बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म समझते हैं। ओके, ये हो गया बायो। फ्लॉक का अर्थ है झुंड, ग्रुप्स, समूह। तो बायोफ्लॉक के सिंपल जो लैंग्वेज है उसमें है जिसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के झुंड हो। उसके बाद बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी क्यों फिश फार्मिंग में आए हैं? व्हाई नॉट इट शुड बी देयर इन डकरी, पिगरी एंड कैटल फार्मिंग, डेयरी? व्हाई वी टॉक अबाउट ओनली इन फिश? Because it can be food for the Fish, okay. Anything more? सेम मीडियम है, मीडियम से अच्छा, सेम मीडियम है, पानी होना चाहिए, ओके। और फीड का कॉस्ट रिड्यूस करने कैसे? नेचुरल फूड पे करेंगे तो आर्टिफिशियल फीड। अच्छा, नेचुरल फूड पानी में आएगी। अच्छा, और क्यों बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी के बारे में आदमी लोग उतना दिमाग लगा रहे हैं? क्यों चाहिए करके? कम जगह पे ज्यादा प्रोडक्शन, ठीक है, तो लो कॉस्ट फीड, लो कॉस्ट फीड, ओके। और we didn't touch yet the major one. जीरो वाटर एक्सचेंज, ठीक है, we can go with one water for whole cycle. स्कीम दे रहे हैं ना, इसलिए भी तो ज्यादा सोच रहे हैं। पैसा आ रहे हैं, गवर्नमेंट पैसा दे रहे हैं, 7.5 लाख से 50 लाख स्कीम। अच्छा बात बोले हैं, जहां पैसा है उसमें दिमाग लगाना चाहिए। मगर साइंस के जो चीज इसमें नहीं है वो है पानी के सिस्टम से मछली के टॉयलेट को कन्वर्ट करके मछली के लिए भोजन बनाने का सिस्टम का नाम ही है बायोफ्लॉक, जो गाय बकरी डेयरी में नहीं होगा। फिश खाएगी, टॉयलेट करेगी, टॉयलेट में नाइट्रोजन कंपाउंड्स प्रेजेंट रहेगी, मींस एमोनिया नाइट्रेट नाइट्राइट बनेगी। एमोनिया नाइट्रेट नाइट्राइट जो बनी नाइट्रोजन कंपाउंड्स उसको कन्वर्ट करेगा माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोटीन में विद द हेल्प ऑफ मैं जो मैं बोल के आया हूं शुरू में ऑर्गेनिज्म, बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म, वही चीज फिश लेगा। तो ये जो सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम के अंदर एक सिस्टम प्रिवेलिंग नहीं है, जिस कारण से हम लोग बायोफ्लॉक सिस्टम के माध्यम से बेसिकली फिश फार्मिंग करते हैं। और फार्मिंग के ऑलरेडी बोले हैं, कम एरिया, ज्यादा प्रोडक्शन। ज्यादा प्रोडक्शन कैसे, मैं एक सिंपल एग्जांपल थोड़ी देर के बाद दूंगा। उसके बाद बोला है ईयर राउंड प्रोडक्शन कर सकते हैं, जीरो वाटर एक्सचेंज है। आप लोग एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, मैं शायद लास्ट टाइम भी एक लेक्चर लिया था बायोफ्लॉक के ऊपर यहां पर ही, तब मैं बोला था 1 acre means 100 decimal, right? 100 decimal pond is having 5 feet water depth. ठीक है, 1 acre 5 feet water depth, कितना लाख लीटर पानी है? हिसाब किए हैं कभी? कभी हिसाब किए हैं आप लोग? हम लोग बोलते हैं एक के तालाब से 3 टन मछली निकलेगी, 6 टन निकलेगी, आंध्रा में 6 टन निकल रहा है, बंगाल में 5.5 टन, 5 टन निकल रहा है,
रेस्ट ऑफ इंडिया में 3.5 टन के आसपास निकल रहे 1 एकड़ से। कभी हिसाब किए हैं कितना लाख लीटर पानी में 3000 किलो 6000 किलो मछली निकल रहा है? डू यू हैव आइडिया? Then how we can do a comparison between biofloc to a pond system? 1 acre means 100 decimal having 5 feet of water depth can sustain 48 lakhs liter of water approx. अभी 48 लाख लीटर में हम लोग फिश के प्रोडक्शन ले रहे हैं कितने? 3000 से 6000 टन, 6000 किलो, 6 टन है आपके आंध्रा वेस्ट बंगाल में, बाकी रेस्ट इंडिया में 3.5 टन, मतलब 3500 किलो टू 6000 किलो। कितने लाख लीटर? 48 लाख लीटर पानी में। बायोफ्लॉक में हम लोग बोल रहे हैं 10,000 लीटर पानी में, 10,000 लीटर पानी में 6 महीना में हम लोग मिनिमम 200 किलो प्रोडक्शन ले सकते हैं। 6 महीना तब हो गया कितना? 12 महीना में 2 क्रॉप, मतलब 400 किलो हम लोग प्रोडक्शन ले रहे हैं 10,000 लीटर पानी में। आप हिसाब करो कैलकुलेशन करके, 48 लाख लीटर पानी में मोटा मोटी निकल रहा है 4000 किलो में, एवरेज कर दिया, ठीक है? और 10,000 लीटर में निकल रहा है 400 किलो। कितना टाइम्स हायर प्रोडक्शन है बायोफ्लॉक? ठीक है, आप लोग हिसाब करते रहो। आई विल कम टू आस्क इन द लास्ट कितना टाइम्स मोर वी कैन डू द प्रोडक्शन। नेक्स्ट प्लीज, आई थिंक स्लाइड्स। नेक्स्ट, मैं ऑलरेडी बोला हूं ये चीज, मगर ये चीज थोड़ा सा आप लोग को जानकारी देना इंपॉर्टेंट है। मैं ऑलरेडी बोला हूं व्हाई बायोफ्लॉक इंपॉर्टेंट, बायोफ्लॉक सिस्टम क्या है, मगर बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी इज इन्वेंटेड वेयर? Biofloc technology invented first time 90s in Israel, where there is not much fresh water available, there is not productive lands are available, there is a scarcity of water, but technologically Israelis are sound. आज के दिन में आप देखोगे जितने सारे इंडोर बेस्ड फिश फार्मिंग टेक्नोलॉजी कोई भी हो, बायोफ्लॉक हो, रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर हो, आरएस सिस्टम हो, aquaponics models हो, all are invented by Israel. Even drip irrigation के भी जन्म हुआ है from Israel. One drop, one plant. That also done by Israel. Okay. So 90s में Professor Yoram called as a father of biofloc technology. Though he did with tilapia and shrimps in his technology in Israel, but afterwards in the southern Asia during last 5 to 6 years technology is divided into many forms. अभी बहुत सारे fish species, seed nursery management, grow out culture management, even ornamental fish farming also people started with based on biofloc. प्रोफेसर इरम स्टार्ट किया था तिलापिया और वेनामाई से। अभी हम लोग ऑलमोस्ट 21 वेराइटीज ऑफ फिश स्पीसीज वी आर डूइंग इन बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट, देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड कार्बन नाइट्रोजन रेशियोस। ओके, कार्बन नाइट्रोजन रेशियोस इज द pillar of your biofloc technology. You should know it. आज के दिन में बहुत लोग टैंक लगा लेते हैं, मछली छोड़ देते हैं, इनिशियली प्रोबायोटिक डाल देते हैं, पहले 6 महीना बढ़िया चल रहा है, फिर बोलते हैं मेरा तो मछली नहीं बढ़ रहे हैं, मेरा फिश नहीं ग्रो हो रहे हैं, फिश 7 महीने से बोलते हैं मेरा मोर्टिलिटी आ गया, टैंक में फ्लॉक नहीं बन रहे हैं।
इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इज ओनली बिकॉज ऑफ नॉट प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन रेशियोज। घर बनाने के लिए हम लोग जैसे ईंट, बालू, सीमेंट के एक पर्टिकुलर रेशियोज में मिक्स करते हैं। जैसे घर बनाने के लिए 3 किलो से एग्जांपल 3 किलो सैंड के साथ 1 किलो सीमेंट देना आपको इंपॉर्टेंट है, तब आपके घर के स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ आएंगे। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में भी 1 भाग नाइट्रोजन के लिए 15 से 20 भाग कार्बन होना इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा कार्बन आप ऐड करोगे उतना ज्यादा बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन रेट बढ़ेगी, उतना ज्यादा बैक्टीरिया आपके टैंक से नाइट्रोजन कंपाउंड को खाएगी और उससे माइक्रोबियल प्रोटीन बनेगी जो बेसिकली फिश को लास्ट में चाहिए। इसलिए कार्बन नाइट्रोजन रेशियो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। विदाउट कार्बन नाइट्रोजन रेशियोज हम लोग बायोफ्लॉक को कभी भी सस्टेन नहीं कर सकते। बहुत लोग टैंक लगा देते हैं, मछली नहीं बढ़ रहे हैं, फिर जाके कोई कमर्शियल फीड के कंपनी से बैग लेके आते हैं, मुझे 55% प्रोटीन दो, जिससे ज्यादा प्रोटीन खिलाऊं मछली मेरा फिश फटाफट बड़ा हो जाए। नॉट पॉसिबल। हाई प्रोटीन खिलाना का अर्थ हुआ हाई परसेंटेज ऑफ एमोनिया भी आप टैंक के अंदर डाल रहे हो। हाई परसेंटेज ऑफ एमोनिया जब बढ़ेगी तब आपको पानी एक्सचेंज करना है, पानी ब्लूम आ जाएगी, पानी में बदबू मारेगी, उसका कई सोल्यूशन आप निकाल नहीं पाओगे। पानी निकालते रहोगे, डालते रहोगे, उससे ना फिश में डिजीज आउटब्रेक आएगी। मगर आप फोकस करोगे कार्बन के रेशियो के साथ नाइट्रोजन के रेशियो मिला के मुझे देना है, तभी जाके आपके ना फ्लॉक बनेगी। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कार्बन नाइट्रोजन की रेशियो हमेशा 15 से 20 है। बहुत लोग 10 बोलते हैं, मगर आई विल टेल यू, यू ऑलवेज गो विथ 15 to 20. हायर द परसेंटेज ऑफ कार्बन, बेटर द नाइट्रोजन एस्टिमुलेशंस फ्रॉम द टैंक. नेक्स्ट, मैं ऑलरेडी बताया हूं जैसे तालाब के साथ बायोफ्लॉक का क्या एडवांटेज है। कम एरिया में आप ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो। ऑलरेडी मैं तालाब का एग्जांपल आपको देके रखा हूं। नेक्स्ट, ऑलरेडी वही है, लेस एरिया रिक्वायर्ड बायोफ्लॉक, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप देखो बायोफ्लॉक का ऊपर में जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या है, फूड से वेस्ट आ रहे हैं। मछली खाना खाया, 1 किलो दाना मछली कितना परसेंटेज हजम कर सकता है? 1 किलो खाएगी, 1 किलो देने से 1 किलो खाएगी, कितना खाएगी? 50-60% खाएगी। अच्छा, 50-60% खाने से बाकी 40% आपके वेस्ट है। 40% का अर्थ हुआ 40% आपके नाइट्रोजन के कंपाउंड्स टैंक में जा रहे हैं। मैं बहुत सिंपल फार्मर से कैलकुलेशन से बोल रहा हूं। 100 ग्राम खिलाया था, 60 ग्राम पेट में रहा, 40 ग्राम एमोनिया टैंक के अंदर आया। नाइट्रोजन आपके वेस्ट बना तो फर्स्ट आपके बनेगी एमोनिया। एमोनिया फिर कन्वर्ट होगी बेनिफिशियल बैक्टीरिया होने से नाइट्राइट्स में, मगर वही चीज जो जनरल प्रोसेस है फिर नाइट्रेट्स बनता है नाइट्रेट्स में। मगर हम लोग यहां पर कर रहे हैं एमोनिया बनने के साथ साथ ही हम उसमें कार्बन ऐड कर रहे हैं, साथ में फिर एरेशन दे रहे हैं। जब कार्बन ऐड कर रहे हैं, एरेशन दे रहे हैं, एमोनिया बाकी 2 साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तब वहां जाके रुक के वो बैक्टीरिया के भोजन बन रहे हैं और बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस बैक्टीरिया को फिश से खा रहे हैं। सर ये हमें कब पता चलेगा कार्बन ऐड करना है? जब आपके टैंक के अंदर एमोनिया मापोगे, पहले एमोनिया था 1 ppm 1 मिलीग्राम पर लीटर, अभी अब देखा 7 दिन के बाद मेरा 2 ppm हो गया, 2 मिलीग्राम पर लीटर होता है। उसका मतलब वो 1 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से आपके टैंक के अंदर एमोनिया भरा, तो आप क्या बोला, मैं मोटा मोटी उसमें 20% कार्बन ऐड कर दूं। अब कार्बन का अर्थ ए है नहीं है, मैं कोल उठा के दे दिया। कार्बन का ऐड हुआ शुगर, मोलासेस, जैगरी, कोई भी स्वीट जो चीज है। बहुत लोग जो मिठाई के दुकान में जो चाशनी भी यूज कर सकते हैं, टेपियोका फ्लोर भी यूज कर सकते हैं, राइस ब्रान यूज कर सकते हैं, व्हीट ब्रान यूज, जिसमें कार्बन है। मैं शो करूंगा, मेरे पास एक चार्ट है कौन सा प्रोडक्ट में कितना परसेंटेज कार्बन है। चीनी में भी 2 टाइप की चीनी आते हैं, एक एकदम प्योर क्रिस्टल बड़ा बड़ा दाना, एक आता है रेड कलर।
मगर बायोफ्लॉक में रेड कलर वाले शुगर सबसे बढ़िया है। तो हम लोग को जब एमोनिया लेवल धीमा धीमा करके बढ़ेगी तभी हम लोग को कार्बन धीमा धीमा करके ऐड करना है, और साथ में प्रॉपर एरिएशन रखना है, जैसे मेरे नाइट्रेट नाइट्राइट्स ना बन के मेरे बैक्टीरियल प्रोटीन बने। बात समझे आप लोग? बहुत लोग क्या करते हैं, एमोनिया बन गया फिर नाइट्राइट्स भी बन गया, जब नाइट्रेट्स बनने वाला है तब जाके डालते रहते हैं मोलासेस। जैसे जिनके बदन में जान ना हो, बाद में क्या मास्क लगा के ऑक्सीजन देने से काम चलेगा? हमारे बहुत सारे फार्मर्स के वही चीज है, शुरू में देखते नहीं है, लास्ट फेज में जाके सब कुछ करने के लिए रेडी है। पानी एक्सचेंज कर देंगे, नया पानी डाल देंगे, फिर खाना बंद कर देंगे, फिर जितने सारे दवाई है सब डालेंगे, फिर जाके ना जितने आप दवाई यूज करोगे बेनिफिशियल बैक्टीरिया भी आप घटा रहे हो, ये भी आपको दिमाग में रखना है। हमारे सिस्टम को ऐसे रखना है जैसे हम लोग उसको कंटिन्यूशन कर पाए। ओके, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। अच्छा, बैक बैक बैक। अच्छा, मैं जो चीज बोल रहा था वही चीज यहां पर आपको स्कीमेटिक डायग्राम में दिखा रहे हैं। यहां पर देखो, फीड का अर्थ हुआ, फीड कमर्शियल फीड मतलब कार्बन एंड नाइट्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन होना चाहिए, राइट? तभी वो दाना बनेगी। तब कार्बन नाइट्रोजन खाया, जितना वो हजम कर पाए उतना हजम किया, उसके बाद नॉन यूटिलाइज फॉर्म ऑफ कार्बन और एमोनिया को छोड़ा, और साथ में उससे क्या बना, नॉन यूटिलाइज कार्बन को ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और बाकी जो एमोनिया था वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ। उस टाइम में आप ऑक्सीजन और साथ में आप मोलासेस ऐड करोगे, तब जाके वो आपके माइक्रोबियल प्रोटीन बना। आप राइट साइड में लिख के रखा है एडेड कार्बोहाइड्रेट्स मतलब कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। ये फोटो यूरम सर के बुक से है। इफ फोटो में जो चीज आप देख रहे हो, जितने सारे आंखें देख रहे हो, ये एक एक बैक्टीरिया है। बायोफ्लॉक में मैं शुरू में बोला, झुंड बना के काम करने का प्रोसेस ही है बायोफ्लॉक। ठीक है, कभी कभी हम लोग है ना झुंड नहीं बना के थोड़ा सा प्रोबायोटिक के पाउडर डाल दिया, सोच लिया हाँ मेरे उसमें टैंक में प्रोबायोटिक है। अनलेस एंड अनटिल आपके बैक्टीरिया उसमें ग्रो हो रहे हैं, झुंड बना रहे हैं, एक साथ वो लोग मास बना के रह रहे हैं, तब जाके आपके सिस्टम स्ट्रेंथ मिलेगी, अदरवाइज नो। सो इसलिए बायोफ्लॉक में ये चीज है, लेट अस फ्लॉक टुगेदर एंड कीप ए कंपनी, देन ओनली द बायोफ्लॉक सिस्टम विल बी सस्टेन। नेक्स्ट, अभी जो चीज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वो है बायोफ्लॉक के कंपोजिशन क्या है। बहुत लोग बोलते हैं बैक्टीरिया मतलब बायोफ्लॉक है, दैट इज नॉट ट्रू। बायोफ्लॉक इज ए हेटेरोजेनियस ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म such as bacteria, algae, green algae भी कभी-कभी आपने देखना, आप जब टैंक लगाओगे हल्का सा सनलाइट मिलेगी तो हल्का सा एक algae भी आएगी साइड में, टैंक के साइड में। That green algae, different type of fungi, invertebrates मतलब मॉस्किटो के लार्वी भी also can consider as a component to biofloc। एंड डेट्रिटस, डेट्रिटस मतलब है जो खाना खाने के बाद भी नीचे जा रहे हैं, फिर वो मिक्स्ड हो रहे हैं, सस्पेंडेड सॉलिड जितने सारे हैं सब मिला के जो चीज है हेटेरोजेनियस ग्रुप है, उसको हम लोग बोलते हैं बायोफ्लॉक। हेटेरोजेनियस ग्रुप को और थोड़ा सा सिंपल एग्जांपल है, जैसे बिरयानी। बिरयानी में सिर्फ चावल और चिकन से नहीं बनता, उसमें बहुत सारे मसाला भी डालते हैं। जब सब मसाला डालेंगे तब जाके उसके टेस्ट आएगी, खाने में भी अच्छा आएगा। तो बायोफ्लॉक में भी जब हर कोई चीज एक साथ रहेंगे झुंड में, तब जाके वो बायोफ्लॉक आपके बढ़िया होगी। ओके, एंड बायोफ्लॉक कंसिडर्ड एज ए लाइफ फीड। लाइफ फीड आप लोग जानते हैं, एक एग्जांपल और Infusoria also comes into biofloc। आपके जितने सारे बैक्टीरिया है सब लाइव है, they are movable, they have life inside, so they are considered as a living life feeds। okay, उसके बाद
the size of bacteria is nanoparticles to microscopic, we can see. For 50 to 200 micron. 50 मतलब जो लोग मेकअप में फेस पाउडर यूज करते हैं आप लोग, वो सबसे ज्यादा फाइनेस्ट पार्टिकल होते हैं 40 माइक्रॉन्स। आप सोच लो उतना से जो लोग फिर रात देखते हैं बालू सैंड, उसके जो साइज है अंडर माइक्रोस्कोप 200 माइक्रॉन्स। एग्जांपल्स। ओके, नेक्स्ट, दिस इज अंडर माइक्रोस्कोप 100 to 200 microns. How bacteria are, clustered together and they form a group of bacteria. Okay. Next, this is EMOF cone. I will show that later, by which we can take the volume of bacteria basically. Okay. Next, this is EMOF cone. How we measure bacteria biomass present in water. Each cone is a 1000 ml marking. So it means 1 liter of water. What is the range of bacteria settle down inside your cone, by which we can calculate the bacteria density inside the tanks. आप कैसे बैक्टीरिया आपके टैंक के अंदर है, कितना है, कितने मात्रा में है, उसको आप मात्रा हिसाब कर सकते हैं। नेक्स्ट, दिस इज फ्रॉम ए फार्मर्स फील्ड। आप देखो यहाँ पर आंख से आप देख सकते हो कितने मास डेंसिटी में बैक्टीरिया अवेलेबल है। मास इंडिविजुअल नहीं है कोई भी, ऑल आर इनटू ग्रुप्स। एंड इनके टैंक में इमोफ कोन में रेंज थे 120। जब आप देखोगे ज्यादा क्वांटिटी में आपके टैंक में बैक्टीरिया बन रहे हैं, तो वी हैव टू रिड्यूस आर्टिफिशियल फीड्स। जैसे फिश उस पर्टिकुलर चीज को खाते रहे कंटिन्यूअस। जब आर्टिफिशियल फीड आप देते रहोगे, साथ में हाई डेंसिटी फ्लॉक भी रहेगी, तब एमोनिया बढ़ेगी। और हम लोग जानते हैं कोई भी लाइव फीड के एक पर्टिकुलर लाइफ स्पान होते हैं, एक लाइफ टाइम समय होते हैं। 1 महीना आपका बैक्टीरिया जिंदा नहीं रहेगा। आपके बैक्टीरिया जिंदा रहेगा इट मे बी फॉर 30 मिनट्स टू 1 आवर, नॉट बिफोर दैट। उसके पहले उसको कंज्यूम करना है। बहुत लोग सोचते हैं आज बैक्टीरिया के इनोकुलम डाल दिया, 1 महीना तक मेरा टैंक में बैक्टीरिया रहेगा। नॉट पॉसिबल। 7 to 10 days you need to again put little bit of inoculum, so that whatever died they should again get regenerated and makes a new colony, new structure of them. Okay. Next. Now the question is why rohu katla we cannot do in biofloc? Why people talk about only catfish to grow in biofloc? Anything more? Resistance. अच्छा, और साइज? क्या साइज? फिश के साइज, मार्केट के साइज? हाँ, सॉरी, साइज मतलब क्या साइज? फिश के साइज ना मार्केट में बेचने का साइज? बेचने का साइज बोल रहे हैं ना, फिश छोड़ने का साइज बोल रहे हैं? स्टॉक, मार्केटिंग साइज। ठीक है, आप लोग बोले हो, एक बोले हो रेजिस्टेंस, एक बोले हो रेस्पिरेटरी एक्सेस ऑर्गन है, और एक बोले हैं मार्केट के साइज, और कुछ है? ग्रोथ ज्यादा होते हैं। अच्छा, ओके, और हार्डी होते हैं। बायोफ्लॉक में फूड जो प्रिपेयर होता है, मे बी फिश वो इजीली वो भी रोहू कतला भी खाएगी। आपके छोटा सा एग्जांपल है, 10,000 लीटर आपके पास एक टैंक है जिसमें 10,000 लीटर पानी है। उसमें आप रोहू कतला पालने से
रोहू कतला तो 100 ग्राम 50 ग्राम करके कोई मार्केट में नहीं खाएगी ना। मान के चलो तब भी 200 ग्राम करके आपको मार्केट में रोहू कतला बेचना है। 10,000 लीटर टैंक में आप 1000 पीस के आसपास ही रोहू कतला छोड़ सकते हो, ठीक है। मगर 10,000 लीटर टैंक में आप तिलापिया, पंगास, सिंगी, मांगूर, टेंगरा, पापदा, कोई भी मॉरल्स, कोई भी कैटफिश आप करो, 10,000 लीटर पानी में आप 50 से 200 से 250 ग्राम तक मार्केट के साइज में आप लेके जाओगे तो 3000 to 4000 मछली छोड़ सकते हो। और कम समय में, कम पानी में, ज्यादा डेंसिटी में एक जितने सारे फिश कैटफिश वाले हैं रह सकते हैं, आपके रोहू कतला रह नहीं सकते। कम समय में कैटफिश वाले ग्रोथ ले सकते हैं, 4 महीना से आप बेचना चालू कर सकते हो। रोहू कतला पालने के लिए 9 महीना कम से कम चाहिए। तो साथ में इसका अर्थ हुआ रोहू कतला पालने से इनपुट कॉस्ट ज्यादा है, आउटपुट कम है। कैटफिश पालने से इनपुट कॉस्ट कम है, आउटपुट ज्यादा है। इस कारण से बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी में रोहू कतला के पालन नहीं होते हैं, कैटफिश रिलेटेड फिश के पालन होते हैं। ओके, नेक्स्ट बोल दिया आंसर ऑलरेडी। नेक्स्ट ओके, दिस इज शायद आप लोग टैंक देखे हैं, नहीं देखे हैं? आप लोग बायोफ्लॉक के टैंक देखे हैं कभी? सर यहाँ पे सेटअप किया है एक डिस्ट्रिक्ट आप देखे हो? नहीं देखे। हम लोग का बाय नेक्स्ट मंथ रास नहीं है। हम लोग चाहोगे तो वहां पर जब टैंक के कंस्ट्रक्शन होंगे तब आप भी जाके देख सकते हो कैसे टैंक बना रहे हैं, कैसे वो हो रहे हैं। उसके बाद टैंक लगाने के बाद उसके क्या क्या मटेरियल चाहिए, कैसे फिटिंग करते हैं, टैंक लास्ट में बनने के बाद देखने में कैसे। और सर के भी आने वाले हैं, उनकी भी अभी फंड मिला है PMSY के स्कीम से, उनकी भी काम चालू होंगे, मगर अभी रिसेंट चालू होंगे उनके ऑलरेडी सामान पहुंच गए हैं, बंदे भी कल पहुंच जाएंगे। तो आप लोग को जो इंटरेस्ट है वो लोग जाके देख सकते हो, पास में ही है। यहाँ पर आप देखो एक आदमी तालाब के बीच में खड़े हैं और बायोफ्लॉक टैंक एक सामने में खड़े हैं। वो दोनों में दो चीज है, मैनेजमेंट कॉस्ट पॉन्ड में बहुत ज्यादा है और बायोफ्लॉक में मैनेजमेंट कॉस्ट 0। घर के आदमी बायोफ्लॉक मैनेज कर सकते हैं, तालाब देखने के लिए बाहर से लेबर रखना। मछली पकड़ने के लिए तालाब में फिशरमैन को पैसा ज्यादा देना है, बायोफ्लॉक में खुद के मछली खुद पकड़ के मार्केट में बेच सकते हैं। But sir, in biofloc we have to manage other things, sea and dry flu. Pond is a natural habitat. आ रहे हैं, बोले। बायोफ्लॉक में जब मर्जी मछली उठा के आप बेच सकते हो, तालाब में आप कर नहीं सकते हो। तालाब में पोचिंग और पॉइजनिंग के रिस्क है, बायोफ्लॉक में रिस्क कम है। मगर डिसएडवांटेज ऑफ बायोफ्लॉक है, विदाउट पावर योर सिस्टम इज फेल। इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, नहीं होगा तो बैटरी बैकअप चाहिए, वो भी नहीं होगा तो जनरेटर की बैकअप चाहिए। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, स्मार्ट आदमी स्मार्ट फार्मिंग मतलब बायोफ्लॉक कर सकते हैं। जिनके दिमाग में बुद्धि हो, बुद्धि वही कर सकते हैं। जिनके दिमाग है मगर बुद्धि नहीं है, मत करो, घर में सो। जिनके पास बुद्धि है, जिनके पास नॉलेज है, जो सिस्टम के बारे में जानते हैं, जो कार्बन नाइट्रोजन रेशियो मेंटेन करने का एक्सपीरियंस है, वही ये चीज कर पाएंगे। जिनके पास नहीं है, करके भी कोई फायदा नहीं है, पैसा का बर्बादी। ओके, नेक्स्ट मैं बोल दिया सब। ओके, इतना टाइम तक जितने सारे चीज बोले हैं उसमें आपको कोई क्वेश्चंस हैं? Yes sir. क्या क्वेश्चन? सर पहला क्वेश्चन, मगर आपके क्वेश्चन में जितना चीज बोल के उसके रिलेटेड हो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन मत पूछना। यस सर। सर एक्चुअली ये जो बायोफ्लॉक होता है इसमें हेटेरोजेनिसिटी होती है, लाइक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो इन
in a particular habitat. So sir वहाँ पे disease outbreak के बहुत ज़्यादा chances होंगे. पहला क्वेश्चन मेरा ये. सर दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि बायोफ्लॉक जो है it needs more attention than a pond. सर उस चीज को हम कैसे ये करेंगे? एडजस्ट करेंगे. Exactly. थर्ड वाले और भी क्वेश्चन है. क्वेश्चन को पहले जो बोलता हूँ, पैसा कमाने के लिए तो अटेंशन देना जरूरी है ना. जिसमें पैसा है अटेंशन नहीं दोगे आप. सब अगर बॉन्ड में हम ये चीजें करेंगे वहाँ तो हमारा नेचुरल. तो मैं तो ऑलरेडी बोल दिया हूँ ना आपका 48 लाख पानी में 3000 निकल रहा है, 10,000 में 400 किलो निकल रहा है. तो जिसमें प्रोडक्शन ज्यादा है उसमें अटेंशन ज्यादा देना का इम्पोर्टेंट है ना. आप सिर्फ सोचोगे कश्मीर में बैठ के सिर्फ अखरोट बेचोगे काम चलेगा? सर कंज्यूमर एक्सेप्टेबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे कैटफिशेस आपने बोला. मैं आऊंगा, आपका क्वेश्चन मैं एक्सेप्ट किया हूँ. आई विल कम टू दैट. मैडम आप अटेंशन समझ लिए, जिसमें पैसा है उसके लिए अटेंशन हमेशा देना है. फिशरीज इज ए बिजनेस ऑफ हाई रिस्क हाई प्रॉफिट. ओके, यू वांट टू से एनीथिंग मैडम? ओके फाइन. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या थी आपकी? डिजीज आउटब्रेक. पानी में मछली पालन मतलब है बुरा और अच्छा दोनों के मिलन, तभी वो पानी बनते हैं, अदरवाइज नॉट पॉसिबल. जब आप घर में एक एक्वेरियम रखते हो, 15 दिन में हो, 1 महीना में हो, 2 महीना में हो, पानी एक्सचेंज करते हो, साफ सुथरा करते हो, जितना अटेंशन उसको भी दे रहे हो, जैसे बीमार ना पड़े, इसमें भी आपको वही ढंग से देना है. मगर इसमें अनबेनिफिशियल बैक्टीरिया तभी बढ़ेगी जब आपके एमोनिया लेवल, नाइट्रेट लेवल, नाइट्राइट लेवल बढ़ते रहेंगे. जब आप उसको कंट्रोल करोगे और बेनिफिशियल बैक्टीरिया के ग्रोथ के ऊपर फोकस करोगे, ऑलवेज योर सिस्टम विल बी ए हेल्दी सिस्टम. मगर जब आपके बेनिफिशियल बैक्टीरिया का अर्थ हुआ आपके फ्लॉक डेंसिटी घट रहे हैं, एमोनिया बढ़ रहा है, इज इंडिकेशन आपके टैंक में बेनिफिशियल बैक्टीरिया नहीं है. मगर आप फ्लॉक के डेंसिटी बढ़ रहे हैं, एमोनिया मिनिमल है. मैं कभी भी नहीं बोलता हूं बायोफ्लॉक में 0 ppm एमोनिया होना चाहिए. दैट इज इम्पॉसिबल. दैट इज इम्पॉसिबल. 1 भी हो, 2 भी हो, बट देयर शुड बी बेटर फ्लॉक डेंसिटी. हायर द बैक्टीरिया ग्रोथ, लेसर द कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस. मगर बैक्टीरिया ही नहीं है, एमोनिया बढ़ रहा है दिन के दिन, तो इज ए unsuitable situation and beneficial bacteria growth is there. Okay, any more questions? अच्छा, acceptability of fish. कश्मीर में नहीं खाते तो बाकी पूरा इंडिया तो खाते हैं ना. आप फोकस करोगे कश्मीर के एप्पल सिर्फ कश्मीर के आदमी खाएं, पूरा इंडिया ना खाएं, तब एप्पल के फार्मिंग चलेगी? लेकिन यहाँ स्टोरेज वगैरह उसका भी मैं आ रहा हूँ. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट दैट. से मैं अभी ट्राउट मछली पालूंगा, से मैं अभी बायोफ्लॉक में पंगास पालूंगा, मगर पंगास के मार्केट के प्राइस है 60 रुपया. आंध्रा वाले कश्मीर में भेज रहे 50 रुपया. तो मैं बना रहा हूँ बायोफ्लॉक में फ्रेश पंगास 60 रुपया 80 रुपया में बेच रहा हूँ, और आंध्रा वाला बर्फ वाला से भेज रहा है 50 रुपया. तुम आदमी तो सस्ता भी जाएगा. मगर आप उसको वहां से हटा के वैल्यू एडिशन में आओ, वैल्यू चेन में आओ. आप देखो एक कश्मीरी कितना मीट खाते हैं हर दिन, हिसाब लगाए हैं कभी? मैंने तो छोटा हिसाब लगाया. बंगाली हैं तो मछली खाते हैं, मगर यहां पर आने से बोलते हैं सब मीट खाओ. एक कश्मीर के आदमी कितना एक महीना में मीट खाते हैं, हिसाब किए हैं कभी? नहीं है, सिर्फ खाते रहते. ऑन ए एवरेज कश्मीर में एक आदमी पर हेड मीट खाते हैं 25 से 30 किलो हर महीना. 10 किलो खाते हो, 2 किलो खाते हो. दैट इज नॉट ट्रू. आप स्टैटिस्टिक थोड़ा सा ट्राई करना. हायर हिली एरियाज, higher hilly areas during the winter, unit consumption is almost 16 kilos average is coming. It may be to people. I am not going into that.
बट मैं वो भी छोड़ दूं, 10 किलो भी एवरेज लेते हैं, 10 किलो। ये सर साल का होगा फिर। मैं पूरा हिसाब करके बोल रहा हूँ ना। आप 1 महीने का बोल रहे हैं। मैं आपको पूछा, आप बोल नहीं पा रहे, तुम्हें क्या? आप मान के चलो 10 किलो नहीं तो 12 किलो जो साल भर में खाते हैं, उसमें फिश के कारण 600 रुपया 700 रुपया शिप के मीट खरीद नहीं पा रहे, फिश के ऑल 300 रुपये एक प्लेट है। मगर आप सोचोगे मुझे जिंदा बेचना है, वैल्यू एडिशन नहीं है ना, तो आप कैसे मार्केट ग्रो करोगे? आपको वैल्यू एडिशन में आना है। आपके यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट हैं, आप आपके ढंग से एक ब्रांड बना के खुद के फिश, खुद के प्रोडक्ट, खुद के ऑर्गेनिक ब्रांड इससे प्रमोट करो। यू विल बी अर्निंग मच मोर व्हाट यू आर प्रोड्यूसिंग फ्रॉम बायोफ्लॉक, फ्रॉम फ्रेश फिश। वैल्यू एडिशन क्रिएट्स 250 times more profit than live fish selling. आप सिर्फ परे हुए हो जिंदा। बायोफ्लॉक में भी अमूल कार्ब, कमन कार्ब भी कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल एंड सेल इट टू 200 to 250 ग्राम। बड़ा मत करो, आधा किलो मत बनाओ, 1 किलो मत बनाओ, छोटा करके लाइव फिश काउंटर पर। आज के पूरा कश्मीर में आप देखो कोई भी लाइव फिश काउंटर नहीं है, सिर्फ ट्राउट है, मगर आप बाकी फिश के भी बारे में सोच सकते हैं। So value addition and marketing always play a major role to any kind of agriculture product marketing. If your brand is good, product is good, market. Okay. So अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बायोफ्लॉक में क्या क्या आइटम की जरूरत है, टैंक कैसे बनते हैं, देखने में क्या होते हैं। इतना टाइम डिस्कस किया, बायोफ्लॉक क्या है, सिस्टम कैसे रन होते हैं, क्या क्या मेजर इंपॉर्टेंस पार्ट है। टैंक्स में जो इंपॉर्टेंस है, इसमें आप देखो ऊपर में एकदम लेफ्ट साइड में है टारपोलिन बेस्ड टैंक्स। उसके बाद आप राइट साइड में जो ऊपर में है वो है कोई भी बैरल जो होते हैं ना, बैरल वो 3 गैल्वेनाइज्ड शीट से वो टैंक बने हैं। और उनका डिफरेंस बताइए मुझे, वो जो ऊपर का जो है वो आयरन शीट के हैं और नीचे वाले हैं गैल्वेनाइज्ड। अभी कुछ कुछ एरिया में आप देखोगे जहां पर ठंडा बहुत ज्यादा पड़ते हैं, जहां पर आपके टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा हो, तो आयरन शीट से ज्यादा गैल्वेनाइज्ड बढ़िया है। मगर आयरन शीट का एक बेनिफिट क्या है, आयरन शीट बहुत इजीली गर्म हो जाते हैं, बहुत इजीली ठंडा भी हो जाते हैं। तो क्या है ना, if it is cold, so they give more percentage of coal inside to it. They don't do insulator का, insulator जो काम है गैल्वेनाइज्ड शीट कर नहीं पाते, ठीक है। और एकदम नीचे में राइट साइड में जो है वो सीमेंटेड टैंक है, कोई चाहे तो आप सीमेंटेड टैंक भी बना सकते हैं। लेकिन गैल्वेनाइज में लाइफ ज्यादा है इसकी, है ना? गैल्वेनाइज के 7 से 8 साल जाएगी शीट, और आयरन मेश में 5 इयर्स जाएगी। आयरन शीट लगाने के खर्चा मोटा मोटी 7,000 है, गैल्वेनाइज के लगाने के 18,000। ओके, उसके बिना भी, टैंक के बिना भी और भी जो सामान चाहिए वो चाहिए एमोनिया टेस्ट किट, इमोवकोन, एक वेट मशीन, पीएच मीटर, टीडीएस मीटर, थर्मोमीटर। मींस पूरा डॉक्टर के चैम्बर खोलना है बायोफ्लॉक के लिए, ठीक है, सब कुछ चाहिए। नेक्स्ट, उसके बाद क्या चाहिए, एयर पंप। एयर पंप बहुत टाइप के होते हैं, छोटा पंप होते हैं, फिर रिंग ब्लोअर है, रूट ब्लोअर है, एयर स्टोन्स है, फिर आपके पाइप है, नॉक है, एयर ऑक्सी ट्यूब्स है। उसके बाद आपके नेक्स्ट, ओके, उसके बाद आपके कभी कभी कुछ कुछ एक्स्ट्रा पाइप के भी स्ट्रक्चर बनाना पड़ते हैं, जैसे आपके हवा, ऑक्सीजन जब पंप चले उसका एयर फ्लो चले। 2 टाइप के टैंक बायोफ्लॉक में हम लोग रेकमेंड करते हैं। एक सर्कुलर टैंक जो हर कोई यूज करते हैं। सर्कुलर टैंक आप हिसाब करने के लिए कैसे वॉल्यूम ऑफ वाटर आप निकालोगे, उसका मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन दिखाया हूं। पाई आर स्क्वायर, एच मतलब आई, हाइट, और 1 CFT मतलब है 28.32 लीटर। मान के चले आपको खुद के टैंक खुद बनाने हो, आप खुद के कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, और जो लोग रेक्टेंगुलर टैंक करना चाहते हैं उनके लिए है सिंपल लेंथ, वाइड एंड हाइट इनटू 1 CFT मतलब 28.32 लीटर।
सबको आप फीट में लेके कैलकुलेट करने से आपको मिल जाएगा। अभी आइए कैसे बायोफ्लॉक में आप प्रोसेस कर सकते हो। अभी सिस्टम के बारे में समझ लिया, अभी आपको टैंक लगाना है, टैंक लगा के मछली पालन करना है। कैसे? स्टेप टू स्टेप 1 स्टेप 2 हम लोग जाए। नेक्स्ट, दिस इज स्टेप 1। आप जहां पर आपको सिस्टमेटिक होना चाहिए, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। उसके बनाने के बाद आप छोटा सा ईटा के स्ट्रक्चर दे सकते हो, नहीं तो स्टोन के स्ट्रक्चर दे सकते हो। चाहो तो आप अंदर के तरफ, अंदर में जो आप स्लोप रहेगी, देखो आप अंदर में एकदम ऊपर में एक पाइप निकाल के रखा है, वो बीच के रेडियस के बीच में है। 4 मीटर के डाया है, 2 मीटर यहाँ पर, 2 मीटर यहाँ पर, बीच का जो है उसके अंदर पाइप को रखा है 45 डिग्री एंगल से। जैसे जितने सारे गंदा चीज हो वो आपके बीच के आउटलेट के मुंह के सामने सब जमा हो, जैसे आपके बाहर के गंदा पानी बाहर इजीली निकल जाए विथ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए 45 डिग्री एंगल में आपके टैंक होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, इसमें फिर जहां पर बड़ा बड़ा चूहा जो आते हैं, चूहा मोटे मोटे, ठीक है, जो पानी में मछली होने से नीचे आके वो काट सकते हैं तारपोलिन को, इसलिए आप नीचे वाली चीज प्लास्टरिंग कर सकते हो, कंक्रीट बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद बनाने के बाद चारों तरफ आपको 4 से 5 रॉड लगाना है, और 20 mm से 22 mm के होना चाहिए। उसके बाद आपको जाली को फिक्स करना है। नेक्स्ट, ऐसे आपको जाली को फिक्स करना है। ग्रीन कलर के भी अभी देख रहे हो आप, एकदम ऊपर में जो ब्लू है उसके आगे में देखो एक व्हाइट है, व्हाइट इनसाइड में एक इनर लाइनर है। उसके बाद मेन जो ब्लू कलर के तारपुलिन उसको फिक्स करना है। 2 लेयर ऑफ तारपुलिन आपके साथ रहेगी। जैसे बाहर से कोई आदमी कुछ पिंचिंग कर दिया, पानी ना निकल जाए। सेकंड है एक इंसुलेटर टाइप के टेम्परेचर बना रहे हैं मेन टैंक के अंदर। और हमेशा टैंक के नेट में भी शेडिंग परसेंटेज के अनुसार नेट होते हैं 80%, 60%, 50%, 90%। तो हमेशा हम लोग को 80% यूज करना चाहिए, 20% हल्का सा सन रे हमारे टैंक के ऊपर हमेशा पड़े। आप देखो एकदम नीचे का टैंक है, एकदम टैंक के साइड से देखो, एकदम बीच में एक 45 डिग्री के एंगल में स्लोप है। फोटो में एकदम नीचे वाला फोटो। नेक्स्ट, उसके बाद जो है एरेशन सिस्टम को इंस्टॉलेशन करना। एरेशन 2 टाइप की मैं बोला हूं, एक है रिंग ब्लोअर, एक है छोटा एयर पंप। रिंग ब्लोअर लगाने से आपको ऐसे पाइप के सिस्टम जोड़ना पड़ेगा, जिस पाइप आपके एयर कनेक्टर से फिर ऑक्सीजन के कनेक्शन उसके अंदर देना है। नेक्स्ट, और ए है ऊपर वाला है आपके आप देखो वहां पर ब्लैक एयर कनेक्टर के साथ रेड कलर के पाइप जुड़ा हुआ है, जिसके साथ एरोक्सी ट्यूब लगा है। एक ऊपर का है फोटो सब रिंग ब्लोअर के, नीचे वाले जो है जिसमें एयर स्टोन लगाए हैं गोल गोल, उसमें छोटा पंप है। पंप आप देखो एकदम नीचे वाला जो फोटो है राइट साइड में, ऊपर में देखो एक पंप रखा हुआ है टेबल में, उससे हवा आ रहे हैं, वो हवा छोटा छोटा एयर पाइप से एयर स्टोन के माध्यम से पूरा टैंक में गिर रहा है। नेक्स्ट, वाटर आप तो हम लोग एफसीओ बोलते हैं इनिशियली, बैक्टीरिया विद कार्बन फर्मेंटेशन प्रोसेस। बैक्टीरिया के ग्रोथ कौन सा दिन में सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है? फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे? फर्स्ट डे। मिड डे मैं बोला हूं, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे। कौन सा दिन में बैक्टीरिया की ग्रोथ सबसे ज्यादा होता है? आप लोग तो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ के आए हो ना। मैं तो अनपढ़ आदमी हूं, मुझे तो नॉलेज नहीं है। सेकंड या थर्ड डे में, फोर्थ में नहीं हो सकता। आंसर एक ही देना है। थर्ड। कितने जन थर्ड डे में है? हाथ उठाइए। एक, थर्ड मतलब बीच में। 1, 2, थर्ड डे और अब फर्स्ट डे में कितने जन? ऑलवेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ हाईएस्ट पीक ऑन सेकेंड टू थर्ड डे, 48 आवर्स टू 72 आवर्स। वही टाइम में हमारे बैक्टीरिया के इनोकुलम को भी मेन टैंक के अंदर देना है।
हमारे बहुत सारे दिग्गज फार्मर जो बायोफ्लॉक के बारे में बहुत सारे नॉलेज है, वो लोग 5 दिन के बाद जाते हैं इनोकुलम को बैग टैंक के अंदर डालने। उस टाइम में बैक्टीरिया ऑलरेडी मर चुका था। टैंक के अंदर जाने के बाद जब मछली छोड़ते हैं, फिर 2 दिन के बाद मछली सब मारना चालू करते हैं ड्यू टू एमोनिया। दिस सिस्टम इज बेसिकली ए साइंस। साइंस के बाहर में कोई चीज नहीं, आप उसको साइंस जितना फॉलो करोगे आपके सिस्टम उतना बढ़िया चलेगा। ओके, उसके बाद आप इनोकुलम ऐड करने के बाद फिर आप पानी की क्वालिटी चेक कर लो। उसके बाद फिश, नहीं तो जो भी फिश हो, नहीं तो श्रिम्प हो, आप उसमें ऐड करो। उसके बाद कंटिन्यूअस बेसिस में आप उसमें कार्बन नाइट्रोजन के रेशियोस देखते रहो। नेक्स्ट, दिस इज द पैरामीटर्स ऑफ टेम्परेचर, डिसॉल्व ऑक्सीजन, पीएच, टीडीएस, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स। बायोफ्लॉक में क्यों टीडीएस जरूरत है? टीडीएस क्या आप समझते हो? टोटल डिसॉल्व क्या? सॉलिड्स में सॉलिड्स क्या है? जो भी पानी में मिला ये है लिखा है कहां पर? फिश के एक्सक्रीटा भी टीडीएस है। नहीं, आप कह रहे हो सॉलिड्स क्या है? मैं पूछ रहा हूँ टीडीएस में आप बोले हो टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स। मैं पूछ रहा हूँ जो सॉलिड्स बोल रहे हो, सॉलिड्स क्या चीज है? इसमें सब कुछ आएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी, एक्सक्रीटा भी, सब कुछ जो भी इस वाटर में प्रेजेंट सब। आपके हेयर भी गिर गया तो अभी वो आप बोलोगे वो भी, मतलब amount of minerals present in the water with microorganisms. टॉयलेट में इस कारण से ही हम लोग बायोफ्लॉक में सॉल्ट यूज करते हैं पानी के प्रिपरेशन के टाइम। रॉ सॉल्ट में विदाउट आयोडीन है। फिश को आयोडीन वाला नमक डालने से मर जाते हैं, इसलिए बायोफ्लॉक सिस्टम में हम लोग रॉ सॉल्ट यूज करते हैं विदाउट आयोडीन। मेन कंसेप्ट इज द माइक्रो nutrients, whatever is missing should be adding to the water so that beneficial bacteria should continue their multiplications inside your tanks with optimum water quality. कश्मीर में बायोफ्लॉक सिस्टम सस्टेन कर सकते हैं only 7 months, not more than that. टेम्परेचर जब 16 डिग्री हो जाएगी, always there is a problem of unbeneficial bacteria, मतलब disease आएगी। इसके लिए 7 महीना में हाई डेंसिटी फार्मिंग करना है और बाकी 2-3 महीना में लो डेंसिटी विथ हाई वाटर वॉल्यूम फिश फार्मिंग करना है। थर्मोस्टेट यूज कर सकते हैं इसमें? हाँ, कोई आदमी चाहे तो उसमें हीटर लगा सकते हैं, थर्मोस्टेट लगा सकते हैं पानी गर्म करने के लिए, मगर सब कुछ पैसा के रिलेटेड है। आपके इनपुट कॉस्ट ऐसे होने चाहिए मार्केट में जाके आप जब सामान बेचोगे, घर के पैसा मार्केट में ना चल जाए। ओके ओके, देन द फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग बायोफ्लॉक में सिर्फ फ्लोटिंग फीड यूज करते हैं, सिंकिंग फीड यूज नहीं करते हैं। सिंकिंग फीड यूज करने से फिश लोकेट नहीं कर पाते खाना कहाँ है और उससे ज्यादा वेस्टेज होते हैं, एमोनिया बनते हैं। नेक्स्ट, इस ऑल आर फ्लोटिंग फीड्स। नेक्स्ट, आपको मैं कुछ स्टेप्स अभी दिखा रहा हूं। स्टेप 3 वाटर प्रिपरेशन वाला। आपको पानी के प्रिपरेशन के लिए शुरू में आप मान के चलो बोरिंग के पानी ले लिया टैंक के अंदर, उसके बाद पीएच चेक कर लिया। पीएच क्या यूज करोगे? पीएच कम है, कम बोलना चाहिए विद कॉन्फिडेंस। क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? खाना नहीं खाएंगे, खाने का समय हो गया, आवाज नहीं आ रही आपकी। पीएच कम होंगे तो हमेशा लाइम
मतलब कैल्शियम कार्बोनेट यूज करना। कॉन्फिडेंस से बोलना चाहिए ना मैडम, पीएचडी कर रहे हैं आप। और पीएच बढ़ गया तो अब जिनके पास जिप्सम नहीं है, कश्मीर में नहीं मिलता जिप्सम, तब कश्मीर में जिप्सम नहीं मिलता, बुक में आप पढ़ लिया जिप्सम देना है, अब नहीं मिलता तो क्या करना है? मैडम जी आपको उनके एक प्रोजेक्ट आएगा भी बायोफ्लॉक, उसमें आपको रखेंगे डॉक्टर कंसल्टेंट, हर माह 10,000 रुपया देंगे। तो अभी उनके पीएच बढ़ गया, 12 हो गया। तो मैं आपका वाला ज्वाइन करूंगी। नहीं मेरा अभी उनको 12 पीएच हो गया, तो आपको सलाह लेने फोन किया, मैडम जी मेरे तो टैंक में मछली खा नहीं रहे हैं, दाना देता हूँ ऊपर में सब मछली घूम रहे हैं, पीएच मापा तो 12 हो गया, क्या सॉल्यूशन देना है आप बताओ? आप बोला जिप्सम जाके मार्केट में ढूंढो, गया मार्केट ढूंढने, गंगावल पूरा घूम के आ गया, श्रीनगर चल गया, जम्मू चल गया, नहीं मिला जिप्सम, बोलता है दिल्ली से आते आते 7 दिन लगेगा। क्या करेंगे? क्या करेंगे? जब कोई चीज हाई एल्कलाइन में जाते हैं उसमें हमेशा लो एसिडिक मीडिया डालना है। जब कोई सिस्टम लो एसिडिक में जाना है उसमें हाई एल्कलाइन को ऐड करना है। तो लो एसिडिक का अर्थ क्या हुआ? विनीगर, नींबू का पानी, इमली का पानी, इसको आपको ऐड करना है पीएच को डाउन करने के लिए। आपको हमेशा फिशरीज इज ए एप्लीकेबल साइंस, जो बुक में पढ़े हो, बुक के बाहर भी जाके ढूंढना है क्या क्या और होते हैं उपाय। ठीक है, तो जब हम लोग मापे टैंक में पीएच कम था इसलिए हम लोग अभी लाइम यूज कर रहे हैं। अब लाइम की भी एक डोज होते हैं। 10,000 लीटर पानी है, बायोफ्लॉक का जो स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है उसमें चूना यूज करना चाहिए। मार्केट में जो एग्रीकल्चर लाइम मिलते हैं उसका यूज करना चाहिए 2 से 3 किलो 10,000 लीटर पानी के लिए, पीएच बढ़ाने के लिए। मान के चलो पीएच उतना ज्यादा एसिडिक नहीं है, 6.8 है, तब आपको 1 से 1.5 किलो ऐड करके एडिशन अच्छा से देने के बाद पीएच मीटर से आप माप के 2 दिन से देखते रहो बैलेंस हो रहे हैं नहीं हो रहे। ओके, उसके बाद पूरा टैंक के अंदर आपको अच्छा से चूना को मिक्स करके स्प्रेड करना है। ठीक है, और उसके 2 दिन के बाद आपको उसमें रॉ सॉल्ट ऐड करना है। एक टिप्स बता के जा रहा हूं, जिस फिश के बदन में स्केल्स है उनको टीडीएस कम चाहिए, जिनके बदन में स्केल्स ना है उनके टीडीएस हाई होना चाहिए। कौन सा फिश स्केल है? जैसे मारेल्स, कमन कार्प, आमुर कार्प, इन लोग में हमेशा टीडीएस आपको 300 से 450 500 के बीच में रखना है। जिनके बदन में स्केल ना हो, कौन सा सिंगी, मागुर, पंगास, जितने सारे कैटफिशेस है उसमें 700 से 800 नहीं तो 1000 भी आप रख सकते हो। हायर द टीडीएस लोअर द डिजीज आउटब्रेक फॉर कैटफिशेस। क्यों? कैटफिश के बदन हमेशा एज ए कैरियर काम करते हैं फॉर डिजीज आउटब्रेक के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको प्रोबायोटिक ऐड करना था, वो उस फोटो में आप शायद देख रहे थे, प्रोबायोटिक ऐड किया। हाँ, नीचे में जो लेडीज डाल रहे हैं वो प्रोबायोटिक है, और जो नीचे में जेंट्स है वो भी प्रोबायोटिक ऐड कर रहे हैं गुड़ के पानी में। आप देखो उसमें पानी ब्राउन कलर के। नेक्स्ट, उसके बाद आप उसको अच्छा से पूरा टैंक में करो और पूरा अच्छा ब्राउन कलर के पानी होना चाहिए। हायर द ब्राउन कलर के पानी मतलब अच्छा बैक्टीरिया के ग्रोथ है, और ब्राउन कलर के अच्छा नहीं है उसका मतलब है आपके टैंक के अंदर बैक्टीरिया अभी बना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट,
उसके बाद आपको फिश लाके, फिश छोड़ने के पहले उसको पोटेशियम पारामैंगनेट के पानी में डीप करके फिश को छोड़ना है, जैसे कोई सेकेंडरी इंफेक्शंस टैंक के अंदर ना जाए। नेक्स्ट बैक। अच्छा, ये चीज बहुत पूरा डाटा उतरने का जरूरत नहीं है, बस दिमाग में रखना चाहिए। लोअर द प्रोटीन लेवल, हायर द कार्बन नाइट्रोजन रेशियो। 40% प्रोटीन के दाना लेके आए हैं, मगर आपको कार्बन नाइट्रोजन रेशियो मिल रहा है सिर्फ 8.1, मगर आप 20% प्रोटीन ले रहे हो, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो है 60:1। हमेशा मिनिमम 30% से चालू करो, देन यू गो रिड्यूसिंग इट स्लोली। ठीक है, आप कार्बन सोर्सेस देख सकते हो, मोलासेस में कितना अवेलेबल कार्बन है, व्हाइट शुगर में क्या है, लैक्टोस में क्या है, ग्लूकोज में क्या है, सेलुलोज में क्या है, स्टार्च में क्या है, कॉर्नफ्लावर में क्या है, राइस ब्रान में क्या है, टेपियोका में क्या है, व्हीट ब्रान में क्या है। दिस इज द चार्ट। ओके, नेक्स्ट एक छोटा सा एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको बोलना चाहता हूं। एक मान के चलो 10,000 लीटर के टैंक है, उसमें 2 ppm आपके एमोनिया है। उसका अर्थ ये हुआ 10,000 इंटू 2, 20,000 मिलीग्राम टोटल एमोनियम नाइट्रोजन प्रेजेंट, जिसको हम लोग टैन बोलते हैं। ठीक है, टैन का अर्थ हुआ इसमें एमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट सब कंपाउंड को लेके टोटल एमोनियम नाइट्रोजन जिसको कहा जाते हैं, तो उसको आप जब मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 20 ग्राम टैन आपका बना 10,000 लीटर के टैंक में। आपका एमोनिया लेवल कितना मापा? 2 ppm। ठीक है, अब कार्बन नाइट्रोजन रेशियो आपको मेंटेन करना है, से एग्जांपल 10:1, तो आपको कितना कार्बन ऐड करना है? 10 into 20, उसका मतलब 200 ग्राम आपको गुड़ नहीं तो कार्बन ऐड करना है। उसका है 12:1, उसका मतलब कितना हुआ? 240। 15:1, इसका मतलब हुआ 300 ग्राम। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट इसमें आप देखोगे जैसे हम लोग बीच बीच में आपको मोलासेस कंटिन्यूअस ऐड करना है विद प्रोबायोटिक बेस्ड ऑन इमोफकोन के अंदर आपके बैक्टीरिया की ग्रोथ देख के। बैक आप देखो यहाँ पर जो इमोफकोन है उसमें 1 ml से स्टार्ट करके 20, 25, 50 वो 1000 ml के है, मतलब 1 लीटर पानी में कितने आपके बैक्टीरिया बन रहा है। इनिशियली बैक्टीरिया 15 दिन समय लेते हैं टू ग्रोथ होने के लिए, इसलिए कंटिन्यूअस बेसिस में आप देखते रहो ग्रोथ कितने हो रहा है। एक बार बैक्टीरिया के कॉलोनी आपके टैंक के अंदर एस्टैब्लिश्ड हो जाए, देन इट ऑटोमेटिकली यू कैन इंप्रूव आपके कार्बन और बैक्टीरिया के क्वांटम कितना कम ऐड कर पाओ। शुरू में थोड़ा सा ज्यादा ऐड करना है कॉलोनी बनाने के लिए। नेक्स्ट उसके बाद जो सीड है, स्टेप 6 में जो सीड्स है, सीड्स में हमेशा हम लोग को सीड्स के साइज बड़ा छोड़ना चाहिए, फिंगर साइज मिनिमम होना चाहिए। बहुत लोग बहुत छोटा जीरा छोड़ते हैं, पानी के हाइट बहुत ज्यादा रखते हैं, जिस कारण से हाई मोर्टेलिटी इनिशियली आते हैं। आप जब सीड के साइज फिंगर साइज मतलब ऑलमोस्ट 3 ग्राम प्लस हो, उस टाइम में पानी का डेप्थ आपके 2 फीट टू 2.5 फीट हो। जब फिश आपके टैंक में 10 दिन 15 दिन आपके सेटल हो जाए तो धीमा धीमा करके आप उसका लेवल पानी के बढ़ा सकते हो, जैसे फिश को स्ट्रेस ना मिले। नेक्स्ट हाउ टू कैलकुलेट बायोमास ऑफ द टैंक एंड हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ द सीड्स। वो डिपेंड करते हैं कौन सा अल्टीमेट साइज में आप मार्केट में मछली को बेचोगे। टैंक वॉल्यूम मतलब है 10,000 लीटर और मेरा बायोमास फैक्टर यहाँ पर है 10। दैट इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड फूड मेनी ऑफ द टाइम, बट बायोमास फैक्टर इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑफ नंबर ऑफ साइकिल्स यू आर गोइंग टू पुट। मुझे 6 महीना में लेना है, 8 महीना में लेना है, 10 महीना में लेना है, 12 महीना में मुझे बायोमास लेना है। यहाँ पर 10,000 लीटर में बायोमास फैक्टर मेरा 10 है, तो मैं 1000 किलो के प्रोडक्शन टारगेट ले रहा हूँ फॉर 10 मंथ्स। उसमें मैं अभी कितना फिश छोड़ू, सीड कितना छोड़ू, तो 10,000 किलो डिवाइडेड बाय 250 ग्राम, मुझे 250 ग्राम करके तिलापिया को मार्केट में बेचना है। तो आई विल बी पुटिंग 400 नंबर ऑफ फिश, जिसका अल्टीमेटली 1000 किलो बन रहा है।
और हमेशा 5% एडिशन मुझे लेना है। 5% एडिशन क्यों लेना है? ड्यू टू मॉर्टेलिटीज। नेक्स्ट, now I will show you some of the monitoring system and green water biofloc system and brown water biofloc system. मॉनिटरिंग का अर्थ हुआ हेल्थ स्टेटस देखने के लिए। बहुत लोग बायोफ्लॉक में जब साइकिल कंप्लीट करते हैं, एट द एंड जाके फिश को बेसिकली मार्केट में डालना पसंद करते हैं। बट एज ए गुड ग्रोथ अप्रोच वी शुड स्टार्ट हार्वेस्टिंग फ्रॉम 3rd to 4th month ऑनवर्ड्स। जो फिश बड़ा हो रहे हैं उसको आप उठा के बेचते रहो, छोटा फिश जो है उसको स्पेस मिले, खाना मिले, उसको ग्रोथ के भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। साथ में और एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉनिटरिंग, वो है फ्लॉक डेंसिटी। रेगुलर बेसिस में आपको मॉनिटरिंग करना, एटलीस्ट 3 days इंटरवल। नेक्स्ट, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स में आपको पीएच, अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, डीओ। अच्छा एरेशन सिस्टम होने से आपको डीओ की जरूरत नहीं है, मगर बाकी इंपॉर्टेंस है। तो डेली में सुबह एक बार और एक बार रात के टाइम इवनिंग में आपको देखना चाहिए। नेक्स्ट, पर डे सर, पर डे। हाँ, पर डे आप करो। आप जो लोग थोड़ा सा इकोनॉमिकल कैलकुलेशन करना चाहते हैं, वाटर क्वालिटी एक दिन छोड़ के भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सर, एआई सिस्टम यूज कर सकते हैं इसमें? हाँ, एआई सिस्टम अभी एआई सिस्टम में मार्केट में अवेलेबल है सिर्फ पीएच, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी और आपके डीओ के आए हैं सेंसर। अमोनिया के सेंसर अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट सर, बायोफ्लॉक का है यहाँ पे हसन सर क्या कर रहे हैं फोटो में? वो हसन सर, वो अच्छा अनमोल के हसन सर, वो मेरे प्रोजेक्ट देखने गए थे कलकत्ता। दिस फोटो इज फ्रॉम मणिपुर। इसमें एक बंदा के बेसिकली 50 टैंक्स है। यू आर फ्रॉम मणिपुर, यू फ्रॉम लद्दाख। ओके, सो दिस बॉय इज हैविंग 50 टैंक्स। He is selling every day from each tank 5% to 10% fish and all are tilapia basically. उसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो फिश बड़ा हो रहा है उसको मैं उठा के बेचता रहूं, तो मेरा खाने का क्वांटिटी कम लगे, और जो फिश बड़ा नहीं हो रहा है बड़ा फिश के कारण उसको स्पेस मिले। नेक्स्ट, now in biofloc if you go lots of research papers, there are people talking about 2 type of technology. One is brown water, one is green water. Brown water is basically more indoor based system where we control sunlight penetrations, and it gives more, it's more based on carbon source. Okay, next, and no back and other is more like green water, where in pond liner system people are now doing shrimps, nursery management. Even down in the right side the photo is a carp nursery where people are only focusing on green water based biofloc system for nursery management of carps. Okay, that is also possible. Next, okay, next. Okay, so if you want to have any questions you can ask me. I'll try my level best to address.